Question number 6. A disc is rolling on an inclined plane. What fraction of total energy is rotational kinetic energy? So same, kinetic energy rotation upon kinetic energy rolling. The formula will be k square by r square upon 1 plus k square by r square. For a disc, coefficient is half. 1 plus half will become 3 by 2. So it will become 1/3. A simple question. Next question we deal with, that is question number 9. Question number 9 क्या कह रहा है? If the rotational kinetic energy is 50%, then what body is it? So kinetic energy rotational upon kinetic energy rolling is 50%, मतलब half होता है. This is half of this, ना? 50% है ना? और हमको फॉर्मूला मालूम है, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन अपॉन काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर. अब हम पहली बॉडी के लिए ट्राई करेंगे रिंग. रिंग का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना होता है? 1. 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2. तो मैच हो रहा है ना. तो कैन आई से दिस बॉडी विल बी अ रिंग. सिमिलरली यू कैन ट्राई फॉर डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर. आप ट्राई कर सकते हो. यू विल गेट दी रिस्पेक्टिव आंसर्स. बट आंसर यहाँ पर ए ही है. क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं. A man standing on the edge of a circular platform which is moving with a constant angular speed, passing through the center. About an axis passing through the center and perpendicular to the plane. If the person is moving along the radius towards the axis of rotation, तो यहाँ पर कह रहा है एक डिस्क है जो घूम रहा है with an angular speed omega about an axis passing through the center. And यहाँ पर the person is also standing. And कह रहा है the person is moving along any radius towards the axis of rotation. This is the person which is moving. Can I say person जब नजदीक आ रहा है इसका moment of inertia कम हो रहा है, because I know moment of inertia depends on distribution of mass. So if the person comes near, the distribution of mass becomes near. So moment of inertia will decrease, and if moment of inertia will decrease, omega will increase, because I know angular momentum about the axis of rotation is I omega, which is nothing but a constant. Why, sir? Because net external torque acting on the system is 0. So if I omega is constant and if I decreases, omega will increase. So this will be the answer. So can I say omega will increase? This will be the answer. Question number 11 पर आते हैं. A thin circular ring of mass m and radius r is rotated with a constant angular speed omega. So there is a ring of mass m and radius r which is moving with an angular speed omega. घूम रहा है. 4 objects of mass small m are kept at the opposite ends of the diameter. The 4 particles are kept over here. Small m, small m, small m, small m. और उसका कितना है? कैपिटल M and radius r. कह रहा है इसका ओमेगा कितना हो जाएगा? ओमेगा डैश. Can I say? Can I conserve angular momentum because the net external torque acting on the system is 0? Can I say L initial will be I initial omega initial? I initial कितना है? रिंग का I कितना होता है? mr square into omega. L final will become I final omega final. I final I किसका रहेगा? रिंग का होगा प्लस पार्टिकल का मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर. सो 4 टाइम्स स्मॉल mr स्क्वायर इंटू ओमेगा फाइनल. बट आई नो दैट L initial is equal to L final because net external torque is 0. That means mr square omega will become mr square plus 4 small mr square into omega final. So omega final यहाँ से हो जाएगा mr square omega upon mr square plus 4 times small mr square. This will be the resultant answer which is given as, okay, can I cancel the r square throughout? ये ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा बेटा? m omega upon m plus 4m. So this will be the resultant answer, that is 2, which is given. You can find it. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग.
I hope you all are understanding it is okay. Simple as the synopsis which we had done. Question number 12 पर आते हैं. A solid cylinder of mass m rolls without slipping. Okay, on an inclined plane. So there is an inclined plane theta. बोलो. And यहाँ पर एक solid cylinder है. Rolls without slipping. With what speed of the center of mass when the cylinder reaches the bottom? तो यहाँ से यहाँ पर आ गया. मुझे चाहिए velocity of center of mass. तो वो ऊपर से नीचे आया. So this is height h. आपको पता है लास्ट ही लेक्चर में वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास हमने लिखाया था. उन्हें इंक्लाइन प्लेन इज अंडर रूट 2gh 1 + k² r². बेटा कौन सा बॉडी है? सॉलिड सिलेंडर. सॉलिड सिलेंडर का k² r² इज लाइक अ डिस्क दैट इज हाफ. सो VCM इज गोइंग टू बिकम अंडर रूट 2gh 1 + half will become 3/2. So this will become 4/3gh root of that. This is the velocity of center of mass when it reaches the bottom. Okay sir. Question number 15 पर आते हैं. I hope you all are solving with me. बहुत easy questions है. Two rods of mass m and length are joined to form a cross. एक रॉड ऐसे है, दूसरा रॉड ऐसे है. They are forming a cross mass m and length L. Okay sir. The moment of inertia of this thin cross about an axis passing through common center. मतलब यहाँ पर चाहिए. तो can I divide this rod into two parts? ये एक रॉड है 1 का, इधर होता है बेटा ml²/12. सिमिलरली ये भी रॉड है, इसका भी यही तो सेंटर है. इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा बेटा? ml²/12. सो रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम I1 + I2 दैट इज I net. That is ml²/12 plus ml²/12 is nothing but ml²/6. I hope everyone is understanding. ठीक है बेटा. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं. A wheel has moment of inertia 5 × 10⁻³ kg/m² and making frequency number of revolutions is 20 revolutions per second. The torque needed to stop it in 10 seconds. Stop मतलब n initial है, n final कितना हो जाएगा बच्चा? 0 × 10⁻² चाहिए. तो that is okay. Then I said torque का फॉर्मूला सबको मालूम है is I alpha, which is I alpha को लिख सकते हैं omega final minus omega initial by t. Omega is 2 pi n, so I into 2 pi n final minus n initial by t. भाई एकदम easy है. I will become 5 × 10⁻³ into 2 pi into n final is 0 minus n initial is 20/10. ये कैंसिल ये 2 to the 4 pi, तो 5 4s are 20 pi into 10⁻³ Newton meter. You can find the answer respectively. ठीक है बेटा. So answer is A. Question number 17. ओके, आप लोग खुद से ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 17 दैट डू द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट अ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ tangential axis and a circular ring about the tangential axis in the plane of the ring. ओके, तो एक डिस्क है. ओके, आई वांट टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन द प्लेन and there's a ring in the plane. I know moment of inertia about tangent parallel to plane is nothing but ID plus mr². यहाँ पर भी रहेगा ID plus mr². बेटा this is ring and this is disc. Tangent parallel to plane है, perpendicular नहीं है. अच्छा ID मालूम है IC/2 plus mr². You know ID is IC/2 plus mr². You know IC for a disc is mr²/2. By 2 will become mr²/4 plus mr² will become 5/4 mr² is the moment of inertia about the tangent parallel to plane. And यहाँ पर हो जाएगा mr² for ring by 2 plus mr² will become 3/2 mr². बोलो, this is I tangent parallel for ring. अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे दोनों की k का रेशियो चाहिए. कैन आई से I is nothing but mk² is 5/4 mr².
एम उड़ा दो, k will become √5/4 r, एंड इसका k सेम m k स्क्वायर will become 3/2 mr स्क्वायर, m और m उड़ा दो तो k will become √3/2 r. Can I say k for disk upon k for ring about that axis will become √5/4 upon √3/2. Yes or no? ये कितना हो जाएगा बेटा? This will be √10/12, that is √5/6. तो ये मार्क करके रखना, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है. You will get it. We'll do question number 18 is same as before which we have done. Question number 19 पर आते हैं. क्या कह रहा है? Okay, this is the axis and यहाँ पर 3 particles of vertices of equilateral triangle, 3 particles are situated at the vertices of an equilateral triangle. यहाँ पर ऐसे बोलो. I want to find moment of inertia about the line axis AX. तो AX पर मुझे इस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है. एंड इसका साइड कितना है? L L L. अच्छा, फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बिकम ऑफ अ पार्टिकल सिस्टम विल बिकम m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर. m1 r1 स्क्वायर, ये खुद m जो है वो एक्सिस पर है तो इसका 0. m2 r2 स्क्वायर, तो ये m r2, बेटा r2 is l/2. देखो ये बीचों बीच है ऐसे, तो दिस डिस्टेंस विल बिकम l/2. सो l/2 का स्क्वायर विल बिकम l²/4. एंड तीसरा वाला m3, हाँ भाई r3 स्क्वायर, सो दिस इज l ओनली, सो विल बिकम ml स्क्वायर. सो दिस विल बिकम 5/4 ml स्क्वायर. इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट व्हिच एक्सिस बच्चा? दैट इज ax एक्सिस. ओके, सो दिस इज वेरी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 20 is same right now which we have done. We'll come to question number 23. A torque is acting, the angular momentum changes. मतलब L initial is a0, L final is 4a0 in time of 4 seconds. The magnitude of torque, you know, जैसे force is change in momentum upon time, वैसे torque is change in angular momentum upon time. L final minus N initial upon time. Change कितना हुआ? a0 से 4a0, so 3a0 change हुआ upon time कितना है? 4. So this will be the resultant answer. बोलो. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम को क्या बोलते हैं बेटा? टॉर्क बोलते हैं. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम को क्या बोलते हैं बेटा? फोर्स बोलते हैं. इसके ऊपर इक्वेशंस है. क्वेश्चन नंबर 26 पर आता है. टू बॉडीज हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 is I, बेटा I2 is 2I. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल. The angular momentum will be in the ratio of, you know, kinetic energy is L²/2I. सबको मालूम है. जैसे kinetic energy is P²/2m, L²/2I. अच्छा, kinetic energy सेम है. Can I say L² is proportional to I? So L1² upon L2² will become I1 upon I2. I1 upon I2 कितना? I upon 2I. कैंसिल तो L1 upon L2 कितना हो जाएगा? 1/√2. सिंपल क्वेश्चन. बोलो. ओके, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? A horizontal platform is rotated with an angular velocity omega, okay, about a vertical axis passing through center. ऐसे घूम रहा है. At some instant of time a viscous fluid of mass m is dropped. तो यहाँ पर एक ऐसे फ्लूइड हमने गिराया मास m का, ये चिपक गया ऐसे, dropped, and then allowed to spread and finally fall on the ground. बोलो. Okay, angular velocity during this period.
अच्छा क्या हुआ, पहले it is coming and sticking over here, then it is allowed to spread and finally fall on the ground. Okay, तो आप देख सकते हो during spreading moment of inertia will increase because distribution of mass will increase. ये अगर बाहर फैल रहा है तो moment of inertia with respect to axis will increase, so omega will decrease. Okay, ठीक है, बट जब वो fall हो गया on ground, can I say moment of inertia will return back? moment of inertia बढ़ेगा नहीं, moment of inertia फिर से घट जाएगा, so omega will again increase. So पहले केस में क्या हुआ, when it fell down it spread out, moment of inertia बढ़ा, omega घटा, बट जब उसने डिस्क को छोड़ दिया, जमीन पर गिर गया, तो can I say this will be like disappearing again? So moment of inertia will again decrease because mass तो चला गया, fluid तो चला गया ground पर, so omega will again increase. So question आएगा, first it will omega will decrease and then it will increase again. Question number 28, moment of inertia कौन सा quantity है बेटा? Always remember it is a tensor quantity. टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटी रहता है जिसका डायरेक्शन जो रहता है वो स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं होता है. ओके, लाइक प्रेशर इज आल्सो देयर. प्रेशर कहाँ पर एक्ट करता है? अगर आप पानी में कोई चीज़ डालेंगे तो प्रेशर विल एक्ट इन ऑल डायरेक्शंस. सो उसका डायरेक्शन कोई स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए वो कौन सी क्वांटिटी में स्पेसिफाई होता है? टेंसर क्वांटिटी. ना तो स्केलर है ना तो वेक्टर है. ओके बेटा, फाइन. विल कम टू क्वेश्चन नंबर 33. I hope everyone will do this thing. Two bodies having same angular momentum, मतलब L1 will become L2 such that I1 is greater than I2. Okay, then the relation between kinetic energy 1 upon kinetic energy 2. हाँ तो easy है with formula. Kinetic energy is बेटा L square by 2 है. तो L तो constant है, तो kinetic energy is inverse to I. तो जिसका I बड़ा उसका K ही छोटा. किसका I बड़ा? I1 बड़ा है तो KE1 will become less than KE2. I hope you are smart enough. ये तो बहुत easy है. Okay, but बहुत टाइम पूछा भी गया है. This is there. Okay. Question number 34 I have done again. It is the same thing. Once you get the synopsis properly, कोई भी sums आपके लिए difficult नहीं रहेगा. And this, okay, you can go through the ट्यूटोरियल शीट. क्वेश्चन नंबर 35 पर आता है. क्या कह रहा है? A uniform rod AB of length and mass m is free to rotate about point A. The rod is released from the horizontal position given that moment of inertia about point A is ml square by 3. The initial angular acceleration of the rod. अब क्या हुआ? ये रॉड है, बोलो, हमने इधर इसको हिंच कर दिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको मालूम है अबाउट दिस पॉइंट ml स्क्वायर बाई 3. सबको मालूम है यार अबाउट द एंड. कह रहा है जब मैंने इसको ऐसे करके छोड़ दिया तो इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना रहेगा? अल्फा चाहिए मुझे. अच्छा, अल्फा किसके कारण होता है? टॉर्क के कारण होता है, सबको मालूम है. ओके, वेयर इज द वेट एक्टिंग ऑफ द होल बॉडी विल एक्ट? वेट विल बी एक्टिंग mg अबाउट द सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ मास फॉर अ यूनिफॉर्म रॉड इज एट L/2. टॉर्क का फॉर्मूला हमको मालूम है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज आल्सो रिटन एज I अल्फा. पूरे रॉड के ऊपर घुमाने वाला फोर्स कौन है? mg. कितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक्ट कर रहा है? अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन L/2. व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? इज ml स्क्वायर बाय 3 एंड दिस इज द इनिशियल अल्फा. ये कैंसिल, ये L एक कैंसिल, सो ये क्या हो जाएगा? 3g बाय 2L. ओके, विल बिकम अल्फा. So I hope you all have got this angular acceleration and this is important question, huh, bachcha? Okay, this is asked in PMT 2-3 times. बोलो. Question number 37 पर आते हैं. A sphere disc of the same radius and mass are rolling on an inclined plane without slipping. AS, AD are acceleration and G is the acceleration due to gravity. Which of the statement is correct? I know when it goes rolling on an inclined plane, the acceleration of rolling is g sin theta 1 plus k square by r square. बोल सकते हो? ठीक है. अच्छा, कौन सी दो बॉडी है? एक स्फीयर है और एक डिस्क है. सॉलिड स्फीयर पकड़ते हैं
का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर होता है 2/5, बोलो। एंड दूसरा वाला बॉडी कौन है, डिस्क है। डिस्क का k स्क्वायर बाय r स्क्वायर कितना होता है बच्चा, हाफ होता है। So can I say this is 2/5, that is 0.4 and this is 0.5. So disk का k square by r square बड़ा है, so a छोटा रहेगा। So a for disk is less than a for solid sphere, and सबसे बड़ा तो g होता है ना, ये आंसर रहेगा। g सबसे बड़ा, फिर solid sphere, फिर disk, you will get the resultant answer, बोलो। Okay. Next one. Please go through the synopsis again and again. You will get the answer. Okay. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। A uniform thin ring, mass 0.4 kg, rolls the linear speed 10 centimeter per second, that is 0.1 meter per second. Kinetic energy of rolling formula याद है, half mv square 1 plus k square by r square, and k square by r square for ring is half or 1, तो ये हो जाएगा half mvcm the whole square, 1 plus 1 होता है 2, ये 2 और 2 कैंसिल, तो mvcm the whole square, m कितना है 0.4, v is 0.1 का स्क्वायर is 0.01, दिस आंसर इज 4 into 10 raised to -3 joules। ओके, काइनेटिक एनर्जी है। समझ में आ रहा है सबको? क्वेश्चन नंबर 44 पर आता है, आप बैठ के पूरा सॉल्व कर देना। द इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन थीटा इज गिवन एज 2t cube minus 6t square. The torque will become 0 when? हाँ बेटा, ओके, टॉर्क 0 तब होगा जब अल्फा 0 हो जाएगा, because tau is I अल्फा। अब अल्फा कैसे निकालते हैं? अल्फा इसका 2 बार डेरिवेटिव करने से निकालते हैं। ओमेगा यू नो इज d थीटा बाय dt, इसका एक बार डेरिवेटिव निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 3t स्क्वायर, सो 6t स्क्वायर माइनस 6 2t, सो ये हो जाएगा 12t, ये मिला ओमेगा। अच्छा, इसका फिर से डेरिवेटिव अल्फा व्हिच इज d ओमेगा बाय dt, सबने पढ़ा है सर्कुलर मोशन में, इट विल बिकम 12t माइनस 12। अच्छा, टॉर्क को क्या बनाना है? हाँ बेटा, द टॉर्क विल बिकम 0 एट व्हाट टाइम? टॉर्क 0 मतलब अल्फा 0, तो 12t माइनस 12 हैज टू बी 0, सो t विल बिकम 1 सेकेंड, सो 1 सेकेंड बाद अल्फा 0 हो जाएगा, एंड अल्फा अगर 0 हो गया तो टॉर्क भी 0 हो जाएगा, बिकॉज टाउ का फॉर्मूला क्या है, आई अल्फा। सो इफ टॉर्क हैज टू बी 0 then alpha has to become 0, so I can never be 0 ना, I तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो आंसर विल बी ओके। 1 सेकेंड, आई हैव डन इट प्रॉपर्ली। देखो फिर से, ये हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 12t, दिस विल बी 12t माइनस 12, so alpha will become 0, you will get the answer। 46. A small mass is attached to a string as shown. यहाँ पर radius r है, यहाँ पर mass attached है। If the tension is increased by pulling and causing the radius to decrease by a factor of 2, so can I say r final will become r initial by 2? The kinetic energy final। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमको पता है, इज L स्क्वायर बाय 2 है। कैन आई से एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट बिकॉज़ नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज 0, सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इनवर्स टू I, but I know I for a particle is mr square, so indirectly can I say kinetic energy is inversely proportional to r square। अच्छा, r फाइनल कितना हो गया, हाफ हो गया, so that means this will become 1 upon half का स्क्वायर, इधर जो नंबर है ना वो नंबर डाल दो उधर, हाफ हो गया, so this will become 4, so kinetic energy final will be 4 times kinetic energy initial। फिर से एक बार देखो, r final becomes half of r initial, kinetic energy final, kinetic energy L square by 2 है, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, हाफ mv स्क्वायर इस्तेमाल नहीं करना है, बिकॉज v के बारे में हमको पता नहीं है।
L कांस्टेंट है, नेट एक्सटर्नल टॉर्क है 0, I इज mr स्क्वायर, r की जगह क्या लिखना है, हाफ लिखना है, 2 मत लिखना, ये 4 टाइम्स हो गया। 47th क्वेश्चन, करेंगे yes, this is F2, this is F1 and this is F3, okay। कह रहा है ABC is an equilateral triangle, F1, F2, F3 represent forces if the total torque is 0, about O is 0, मतलब इसके across torque 0 है, and the magnitude of F3, torque 0 मतलब force into perpendicular distance 0, can I say इसका perpendicular distance ले लो B, इसका perpendicular distance BD, इसका perpendicular distance BD, okay, so F3, अच्छा torque net 0 है about O, मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस तीनों का 0 होना मांगता है। F3 इंटू डी कैसे घुमा रहा है बेटा, ऐसे घुमा रहा है, देखो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो ऐसे घुमाएगा ना ये, ओके, आर बार क्रॉस एफ बार, देख सकते हो ना, आर बार क्रॉस एफ बार ऐसे घुमाएगा, ओके। सो दिस इज गोना रोटेट दिस वे, कैन आई कंसिडर दिस एज प्लस, ये ऐसे घुमाएगा। अच्छा F2 इंटू डी कैसे घुमाएगा, F2 इंटू डी ऐसे घुमाएगा, सो माइनस F2 इंटू डी ऐसे, एंड F1 कैसे घुमाएगा, आप देख सकते हैं F1 इंटू डी भी ऐसे घुमाएगा, F1 फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस अबाउट दिस एक्सिस ऐसे घुमाएगा, आर बार क्रॉस एफ बार अबाउट दिस एक्सिस, सो माइनस F1 इंटू डी विल बिकम इक्वल टू 0, डी 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 कैंसिल, सो F3 विल बी F1 प्लस F2, I hope you all have understood this thing. So anti-clockwise torque will become equal to clockwise torque. और आपको वही concept यहाँ पर apply करना है, you will get the answer. Because the D is the same for everything. Perpendicular distance तीनों का same है, तो that will be the resultant answer. ठीक है बेटा, अब आते हैं question number 49 पर। A solid cylinder of mass 3 kg and radius r is moving with a velocity 4 meter per second. Mass कितना है 3 kg. It collides with a spring of force constant 200 Newton per meter. और कह रहे हैं ये जमीन पर रोल करते हुए जा रहे हैं, तो पूरा रोलिंग एनर्जी स्प्रिंग एनर्जी में बदला, कैन आई से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग इज कन्वर्टेड इनटू स्प्रिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग आपको मालूम है, रोलिंग हाफ एम वी सी एम द होल स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, फिर हाफ के एक्स स्क्वायर, हाँ बेटा ये के फोर्स कांस्टेंट है और ये के रेडियस ऑफ गायरेशन है, कैन आई से हाफ एम वी सी एम द होल स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, कौन सी बॉडी है, सॉलिड सिलेंडर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ होता है, विल बिकम हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ कैंसिल, सो अभी हम क्या करेंगे, m कितना है 3 है, v स्क्वायर 4 स्क्वायर इज 16, 1 प्लस हाफ विल बिकम 3/2, k इज 200, x स्क्वायर, यहाँ से x का वैल्यू आपको मीटर में मिल जाएगा। आई होप यू विल गेट 0.6 मीटर, सो आई होप यू हैव गॉट दिस, ओके। 51st क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस ट्यूटोरियल शीट, एंड इसका जो भी डाउट सॉल्विंग रहेगा दैट विल बी डूइंग वाया जूम, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पूरा सॉल्व करना, जो भी नहीं आता है आई विल बी सॉल्विंग वाया द ऐप ऑफ जूम, ओके। तो आई थिंक सो इट विल बी ओके कंफर्टेबल। 51 पर आते हैं। A circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius r and its moment of inertia of the circular platform is this much and radius कितना है 2 मीटर। It is initially at rest, मतलब उसका ओमेगा इनिशियल 0 है। A 50 kg man, so mass of the man कितना है 50 kg, stands on the platform and begins to walk along the edge with the speed of the man is how much 1 meter relative to the ground, so this is absolute speed। हाँ भाई, time taken by the man to complete 1 revolution, time taken for completing 1 revolution by man
अब हम देखते हैं क्या हो रहा है। देखो क्या हुआ, मैं आपको सिखाता हूँ। इनिशियली क्या हो रहा था, फाइनली क्या हो रहा है, फिर हम लोग देखते हैं। इनिशियली एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म था, ये एक्सिस पर घूम रहा नहीं था, और यहाँ पर जो इंसान था वो भी ही वॉज स्टैंडिंग, ही वॉज ऑल्सो एट रेस्ट, एंड हिज ओमेगा वॉज ऑल्सो 0. ओके, अब फाइनली क्या हुआ मेरा बच्चा, दिस मैन ओके चलने लगा with some speed relative to the ground. The speed is given relative to the ground, not relative to the platform नहीं दिया है, they have given you. So ये normal speed जो दिया है वही लेना है. Relative to अगर platform देता तो हम कुछ operation करते, but यहाँ पर हमको मालूम है this v is given which is with respect to ground, मतलब इंसान जो देख रहा है वो ground से देख रहा है. अभी आपको पता है कि अगर आप ऐसे चलने लगे तो ये डिस्क उल्टा घूमने लगेगी ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि इनडायरेक्टली आप कहां पर पुश कर रहे हो, आप पीछे पुश कर रहे हो ना बेटा. ओके, आपके पैर के फ्रिक्शन आगे लग रहा है, तो इसका इक्वल एंड ऑपोजिट फ्रिक्शन पीछे लगेगा डिस्क के ऊपर, तो डिस्क है ना ऐसे उल्टा घूमना शुरू कर देगी. समझ में आ रहा है? याद रखना, ड्यू टू फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन, देयर इज नो एक्सटर्नल टॉर्क, देयर इज इंटरनल टॉर्क. इंटरनल टॉर्क होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कैन आई से इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज 0, I omega is 0, mvr is also 0, but final angular momentum will become क्या बच्चा? Can I say it will be mvr minus I omega? सर ये क्यों किया आपने? mvr को अगर मैंने पॉजिटिव पकड़ा तो I omega उल्टा डायरेक्शन है, so it will be नेगेटिव होनी ना. अरे yes और no? ओके, ये घूम रहा है एंटी और ये घूम रहा है क्लॉकवाइज, but I know that net external torque acting on the system is 0. That means initial angular momentum will become final angular momentum will become 0 is equal to mvr minus I omega. बोलो. So can I say indirectly mvr is equal to I omega? m कितना है? 50 है, v कितना है? 1 है, r कितना है? 2 है, I कितना है? 200 है, ओमेगा तो ये हो गया 100 और ये हो गया 2, तो ओमेगा will become equal to half radian per second. This is the what sir? रोटेशन ऑफ द डिस्क का ओमेगा जो उल्टे डायरेक्शन में वो घूम रहा है. अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन कह रहा है टाइम टेकन बाय द मैन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन. अब यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है, सब लोग इधर ध्यान देना. सपोज हम लोग टॉप व्यू बनाते हैं इंसान का, ये डिस्क था और इंसान सपोज यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, ये इनिशियल केस है. बोलो, ये मैन है और ये डिस्क है ना. अब हमको चाहिए टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, मतलब इसको पूरा चक्कर लगा के यहां पर आना है. बट ये कब होगा, पूरा चक्कर कंप्लीट कब होगा? जब डिस्क रेस्ट पर रहेगा. बट हमको मालूम है डिस्क उल्टे डायरेक्शन में घूम रहा है. दैट मीन्स मैन इधर नहीं रहेगा, मैन का पॉइंट फिर से पहले आ जाएगा. दैट मीन्स फाइनली अगर मैं बताने जाऊं तो मैन इधर से चला, ऐसे चला, बट डिस्क उल्टी घूमी. सो कैन आई से उसका एक रेवोल्यूशन इधर ही कंप्लीट हो जाएगा. बोलो, कैन आई से मैन इधर से चला, इधर मैन ये पूरा ऐसे चला, बट डिस्क ऐसे चला ना बेटा. सो डिस्क ने कवर किया θ2, मैन ने कवर किया θ1. कैन आई से θ1 प्लस θ2 इज 2 पाई. अरे भाई ये पूरा चक्कर वही पॉइंट पे कब मिलेगा? जब डिस्क रेस्ट पर रहेगा. क्या डिस्क रेस्ट पर है? डिस्क रेस्ट पर नहीं है, डिस्क भी चल रहा है उल्टे डायरेक्शन में. ओके, सो देयर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल एड अप टू 2 पाई. बोलिए, ये तो ऐसे जा रहा है, अगर डिस्क रुका हुआ रहता तो ये θ1 ही 2 पाई होता, बट ये तो चल रहा है θ1, ये चला θ2, तो मिलने का इधर ही हो गया. दैट इज 2 पाई इधर ही कंप्लीट हो गया ना. गेटिंग इट व्हाट्स हैपेंड? सो उसका जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट उसको इधर मिल गया. Are you understanding? Because disk is rotating backwards. He's going this way, but disk is going this way.
ओके ये ऐसे चल रहा है बट ये पीछे जा रहा है, तो पॉइंट उसको पहले ही मिल जाएगा ना। बोलो, ये देखो ये अंगूठे की तरफ देखो ऐसे, ओके उसको चलना है ऐसे, बट डिस्क पीछे घूम गया तो अंगूठा तो इधर आ गया, तो वही पॉइंट जो अंगूठे से वो चला, वो तो चल रहा है ऐसे, उसको अंगूठे की तरफ आना है। ओके बट क्या हो रहा है, वो तो चल रहा है ऐसे बट डिस्क पीछे घूम रहा है, तो ये अंगूठा तो इधर मिला। सो कैन आई से θ1 प्लस θ2 विल बिकम 2 पाई। बट थीटा का फॉर्मूला मालूम है हमको, ओमेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई, where t is the time taken of meeting, yes or no? हाँ भाई, ओमेगा पहले वाले का किसका माना, मैन का, और दूसरे वाले का किसका माना, डिस्क का। सर मैन का ओमेगा क्या है, मैन का ओमेगा मेरे को मालूम नहीं है, मैन का ओमेगा लिख सकते हैं v by r बिकॉज ही इज मूविंग इन सर्कुलर मोशन इनटू टाइम t, और ओमेगा 2 तो हमको मालूम है ना डिस्क का, इनटू t is 2 पाई। सर v कितना है मैन का, v is 1, r is 2, t ओमेगा 2, भाई अभी ओमेगा 2 हमको मिल गया, कितना मिला था हमको ओमेगा 2, अभी तो मिला था ना ओमेगा, कितना मिला था हमको, I forgot how much did you get the value of omega start में, हमने क्या कैलकुलेट किया था, MBR is equal to I ओमेगा ना बेटा, हाफ मिला था, हाफ अभी थोड़ी देर पहले लिखा था मैंने, ओमेगा ऑफ डिस्क इज हाफ इनटू t will become 2 पाई। बोलो t कॉमन, हाफ प्लस हाफ 1 होता है, 2 पाई, so t will become 2 pi seconds। ठीक है बेटा, so this is how you do it। next lecture will be based on tutorial sheet 2, I'll be doing important sums, and the last lecture will be based on doubt solving, where I'll be solving okay the doubts of this thing। Thank you।